अभी कर देना, इतना खटखट सुनाई पड़ कोई भी एनीवन प्लीज क्लोज मम्मी पहले चले ना। अच्छा तो ये यही कर देंगे आप उसको बेटा आप क्या कॉलेज आए थे क्या ज्योति के पास वापस नहीं मिले उसे मिल गए ओके बस आपका हमारा जो सिलेबस था आई थिंक यू ऑल न्यू हाइब्रिडाइजेशन इन सिलेक्शन इन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप मास एंड प्योरलेंस सिलेक्शन पेडिग्री एंड बल्क मेथड अप्लाइड इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्लांट ना तो लास्ट में जो आप लास्ट दिस में मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने सारा एरिया आपका कवर कर दिया था कुछ कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ आपको ऐसा था जो आपको नहीं समझ में आया या मतलब आपने जाके उसको कुछ रीड किया ये तो मैं और अगर आपको स्लाइड का कुछ भी हो तो आप जो है इसको वन बाय वन यू कैन रिवाइज बाय योरसेल्फ दिस इज नथिंग दिस इज अबाउट स्टेट देन these are the terminology I think अब तो आपको सबको पता होगी अब तो आप बता सकते हैं what is genome now tell me what is genome last time भी मैंने कितने अच्छे टीचर नाम मिले कि जो एक ही क्वेश्चन दोनों टर्म पे पूछती है प्लीज एक्सप्लेन आई ऑलरेडी आप एब्सेंट थे लास्ट टाइम क्यों फिर आप टीचर कैसे बनेंगे जब आप खुद ही छुट्टी लेंगे इतनी तो दिस इज बैड ओके जीन आई थिंक everyone knows what is gene just say if you want to explain I will explain you yield quality traits test tolerance these are the all the traits which we take for the improvement of the plant यही तो है जितनी भी इस तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं yield means ज्यादा उपज then qualitative this one is quantitative then qualitative means flavor color after that stress tolerance this is the agronomic practices like salinity salinity you know about the saltiness acidity then the second disease resistance all of you know I think I will explain E H and P relation any problem with that presence of inoculum presence of pathogen then interaction between susceptible variety pathogen and environment okay after that this is nothing more these are the what is this oligogenic polygenic character or allelomorph governed by the single gene oligogenic more than one multiple gene quantitative characters then phenotypic characters and genotypic characters all the Mendel's law all the any laws or any cross or any progenies we will study about the first by phenotypically then by genotypically selection if you have to make same thing here relation between the phenotype versus environment mixed variety relation between environment and genes simplest form what is hybridization simple definition of the hybridization please you tell me आप बताइए पीछे definition पढ़ के ही बताइए what do you mean the hybridization okay nice do you understand this क्या होता है crossing between two genetically dissimilar variety why to maintain better run because of the recombinant because of the variance because of the both the characters or more than characters from the both the parents one or two or many they are better than their parents progenies are better than their parent f1 are better crop than the parent crop why same thing is here recombination of gene cumulative of gene comes together hybrid is simple word hybrid is there what is the hybrid both of the character from the both the parents okay I think if you want any line please ask self pollinated crop and cross pollinated crop do you know I think all you know कोई any problem is self cross or self word जैसे समझते हैं आपस में selfing in between cross mean from the outside or cross then these are also the part अगर आप नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं क्रॉस तो हम फील्ड में भी ग्रो कर सकते हैं बट व्हाट इज द नीड ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन
Anyone tell me? Pardon? One by one. बोलिए. जो हम चाहते हैं, जो करेक्टर अगर सेल्फ पॉलिटेड क्रॉप है तो क्या होगा उसमें, हमारे काउंटिंग वो क्रॉस नहीं करेगा ना. सो वी कैन सेलेक्ट द करेक्टर्स, ट्रेट्स विच वी वांट. तभी तो कहते हैं डिजायरेबल करेक्टर, जो मुझे चाहिए. तो हम उसको अगर सेल्फ पॉलिटेड क्रॉप Okay, that's why we make the process that is the hybridization. हाइब्रिड सीड हमें मिलते हैं जो हमारे चूज किए हुए कैरेक्टर्स को कंबाइन करके नेक्स्ट जनरेशन में देते हैं, जिनको हम हाइब्रिड कहते हैं. तो ये आपका सिलेक्शन मैंने आपको बताया था ना, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आपका आर्टिफिशियल, नेचुरल सिलेक्शन, इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, इंट्रोडक्शन, दिस आर ऑल द मेथड ऑफ सिलेक्शन. सो मैं इन सारे में से हाइब्रिडेशन जो आपको पढ़ा रही हूँ वो क्यों अलग है. सिलेक्शन आपका अगर ब्रांड ब्रीडिंग मींस सिंपल फॉर द वेलनेस ऑफ मैनकाइंड वी सेलेक्ट द बेटर वन, इंप्रूव वन. इसके अलावा कुछ नहीं. अगर एक लाइन में कहा जाए तो वो तो सारी चीजें कर रही है. सिलेक्शन आप करते हो मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन आपके कोर्स में, इफ यू सिलेक्टेड बाय द मास सिलेक्शन मींस मास में, बल्क में, बट क्या किया आपने, सेलेक्ट किया बेटर वन बट फिनोटिपिकली. प्योर लाइन सिलेक्शन सेलेक्ट किया बट प्योर लाइन मींस हेटेरोजाइगोसिटी से होमो तक आने का रास्ता. प्योर सिलेक्शन, होमो जाएगा स्क्यू. व्हाट आइए zoology is okay. Okay, so these are the objectives why we do the hybridization. Okay, क्या रिक्वायर्ड है, ये भी आपका पूरा हो गया था. इसमें एक चीज मैं पूछ सकती हूँ आपसे, इमैस्कुलेशन प्रोसेस में आई थिंक हॉट वाटर ट्रीटमेंट, कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, बाय व्हाट्सएप और हैंड और बाय द यूज ऑफ सम केमिकल्स, वन सिंगल मेल स्टेरिलिटी. सो व्हाट डू यू मीन द मेल स्टेरिलिटी? डू यू नो male sterility? Male sterility means simple, male one is sterile. It's okay, male is sterile है. But आपको नहीं लगता कि आपके टू डिफरेंट सेक्सेस में अगर एक स्टेराइल है तो हमें यहाँ पे उसका यूज अच्छा है हमारे लिए या खराब है? अच्छा है. वाह, अच्छी बात है, अच्छा है. आई थिंक मैं भी ऐसा सोचती हूँ. बट clause 1, suppose we do the emasculation by any means. Emasculation first thing tedious, second thing time taking, third बहुत slow process, and lastly nature है. कभी आपके emasculate करने के बाद भी possibility is there, some contamination is there maybe. secondly अपने आप से छूट गया, क्रॉस से आ गया तो हमारा लॉस होगा, क्योंकि वो आपको तुरंत नहीं पता चलेगा. जब आप ईयर 2 ईयर सिलेक्शन के बाद आएंगे तो आपको लगेगा ये आपका बैक जीन्स को कोई भी नेकेड आई से नहीं देख सकता. विल सी आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द प्लांट, जब एक्सप्रेस करते हैं जीन हम उनको स्टडी करते हैं, दैट इज सिक. ओके, सो अगर हमारे पास हमको ये काम करना ही ना पड़े, रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट, ऑलरेडी वी हैव द मेल स्टेराइल प्लांट, सो इट इज बेटर फॉर मी. आप सबको पता है साइटोप्लाज्मिक मेल sterility is okay, then genic male sterility, और भी होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. जैसे आपको बनाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, बट आपके कोर्स में मेरे ख्याल से इतना नहीं है. 1/3 होता है जो दोनों को मिला दीजिए, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एंड जीनिक मेल स्टेरिलिटी एंड जीनिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी. ये सारे आपको तीनों के मतलब पता है, समझ सकते हैं ना आप इसको. तो इससे एक और आपके कोर्स में है कि नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से तो जो कोर्स है वो मैं 3 बार बोल चुकी हूँ आपको लास्ट टर्म पे ही ना. सिंपल आपका हाइब्रिडाइजेशन इन प्योर लाइन एंड मास सिलेक्शन, आई विल रिपीट फर्दर. बट ए लाइन, बी लाइन एंड आर लाइन, हैव यू हर्ड दीज लाइंस? ए लाइन, बी लाइन एंड आर लाइन. आर मींस सपोज प्लांट इज मेल स्टेराइल. ओके, जनरेशन आपका गैप हो जाएगा अगर सारे प्लांट मेल स्टेराइल हो जाएंगे. ठीक है ना. सो क्या कर, रेस्टोर करना मेल स्टेरिलिटी को मेल फर्टिलिटी में रेस्टोर करना, दैट इज द आर लाइन. सपोज क्वेश्चन आता व्हाट इज आर लाइन, व्हाट इज बी लाइन, व्हाट इज ए लाइन. ए मींस प्लांट सपोज बाय द emasculation by any means or by fertile female plant. So here the female plant known as the without male part. So male sterile, only female part is there, that is A line.
ओके देन मेल अदर प्लांट आपने किसी भी तरीके से मेल स्टेरिलिटी की होगी, वो भी साइटोप्लाज्मिक और बाय द एमस्कुलेटर में समथिंग, बट डिफरेंट प्लांट्स में आपके दूसरे प्लांट में क्या मिलेगा, हर्माफ्रोडाइट प्लांट ना, दोनों मिलेंगे एक साथ। सो जो जहाँ पे हमें और आपने पढ़ा, अगर कई बुक में पढ़ा होगा तो हम डिनोट करते हैं, आई थिंक जो आप तो जेनेटिक्स का पार्ट है, एमएस ना, मेल स्टेराइल जीन, स्मॉल एम स्मॉल एस, ठीक है, मेल स्टेराइल। सो ए जो प्लांट है आपका, वो अगर सिंपलेस्ट है, बहुत इंटीरियर तो आप अपना जेनेटिक्स में जाइएगा, बट सपोज एमएस मीन्स मेल फर्टाइल ए लाइन, ओके, आर इज कैपिटल आपका हर्माफ्रोडाइट है तो आपका कैपिटल एम एस और स्मॉल एम एस है, क्या हुआ ये हेटेरोजाइगस, मेल भी इसमें है फीमेल भी इसमें। ये आपकी आर लाइन क्यों यूज होती है, रेस्टोर द मेल स्टेरिलिटी टू मेल फर्टिलिटी, एंड अदर लाइन इज बी, मैंने बोला ना बी लाइन, ए लाइन बी लाइन आर लाइन, बी मीन्स मेंटेनेंस लाइन, क्योंकि अगर आप सपोज कोई भी हाइब्रिड सीड बनाते हैं जो मेल स्टेराइल है और आपने यूज कर लिया, हम यूज कर लेंगे ना हाइब्रिडेशन में उसको, हम इमस्कुलेशन करने के बाद सीड का क्या करते हैं, आपने इमस्कुलेट किया प्लांट से, मेल पार्ट को रिमूव किया, देन अलाउ टू क्रॉस बिटवीन द pollen pollens and hybridization is taking place, then we'll take the seed and grow for the further generation. This is the hybridization and part of the emasculation. Is it okay? यही तो आप करते हो। तो अगर आपके पास सपोज आपने बाय एनी मीन्स, बाय मेल फर्टिलिटी जीन्स, बाय साइटोप्लाज्म, किसी भी तरीके से हमारे पास अगर छोटे 20 किलो 10 किलो 15, पूरा देश में हम चीज़ों को ग्रो करते हैं ना, तो हमें बहुत नंबर ऑफ पॉइंट में चाहिए। एक मैंने उसको क्रॉस कर दिया, मैंने उसको ग्रो कर दिया, देन हम खाली हाथ हैं, सो हमें उसको रेस्टोर भी तो करना होगा और मेंटेन भी करना होगा। बात आप इस बात को समझ रहे हैं। तो आपका जो बी लाइन होता है, बी लाइन में सेम न्यूक्लिक कंपोनेंट बट इन द जीन, इसमें क्या है, जीन में भी हो सकता है स्टेराइल और आपका साइटोप्लाज्म में होता है। तो अगर आप रेस्टोरर लाइन से करेंगे और कैपिटल एमएस और स्मॉल एमएस दोनों है, तो आप क्रॉस कराएंगे, फर्स्ट फीलियर जनरेशन में आपको क्या मिलेंगे, हाइब्रिड्स मिलेंगे, दे आर ऑल मेल फर्टाइल। ओके, सो उन्होंने क्या किया, आर लाइन ने ए लाइन में फर्टिलिटी जीन को रिस्टोर कर लिया, दैट्स व्हाई इट इज द आर लाइन। ओके, बी मेंटेनिंग लाइन, क्या है, ये सेम आपका है जैसा ए लाइन बट विद द मेल फर्टिलिटी। सपोज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज द फीमेल प्लांट, ओके, व्हाट वी विल गेट द F1 generation, now tell me, cross between, okay, male plant with only female part, one, okay, मैंने ए लाइन क्या बोली है, A is female plant with the male sterility or fertility, sterility, because it's only male, A line is the male sterile, okay, same यही बोला ना आपको, then R is the both fertile, okay, then B is the same maintenance variety, they have the same gene but they are fertile, male fertile. Suppose allow to cross between A and B, how they maintain them, और दोनों में से पहला साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, दोनों को अलग अलग सोच के बताइए। फर्स्ट क्रॉस, सपोज क्रॉस विद द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल फीमेल प्लांट, क्रॉस विद द बी लाइन विद द कैपिटल एमएस, सेम एमएस, आपको ये नहीं पता साइटोप्लाज्मिक से भी होगा। फर्स्ट जनरेशन में ऑल आर स्टेराइल, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सो आपका रेस्ट मेंटेन हो गई ना बेटा, आपको क्या मिलेगा, सारे के सारे प्लांट कैसे मिलेंगे, मेल स्टेराइल, देन वी विल यूज देम द फॉर द फर्दर हाइब्रिडेशन, मेंटेनिंग, इसीलिए हमने कहा ना मेंटेनिंग वेराइटी। बी इज द, आपको पूछा जाएगा उतना लंबा, व्हाट इज ए लाइन, व्हाट इज बी लाइन, व्हाट इज आर लाइन, ओके। अगर आपका जीनिक है, जीन आपको पता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तो विदाउट जीन होता है। अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस प्लांट में मेल स्टेराइल प्लांट है, सो हाउ इट इज मेल स्टेराइल, साइटोप्लाज्मिक कैसे मेल स्टेरिलिटी है, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है। आई थिंक आपको ये बात पता होगी, ठीक है ना। वही जो है आपके कैरेक्टर को गवर्न करता है। जीन मीन्स इन द न्यूक्लियस, आपका मेल फर्टिलिटी स्टेरिलिटी जीन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट इज जेनेटिक GMS,
genetic male sterility. In cytoplasmic male sterility and maintain जो आपका maintenance जो है आपका B line है that is equally same. इसको हम सिस्टर भी बोलते हैं, उसको सिबलिंग भी बोलते हैं, उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सेम है आपका जैसा ए लाइन एंड बी लाइन इज सिंपली सेम. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें मेल स्टेराइल है और उसमें मेल फर्टाइल है. तो अगर आप क्रॉस कराते हैं और हम साइटोप्लाज्म में यूनिवर्सिटी कराते हैं तो हमें 100% मेल स्टेराइल उसने मेंटेन कर दिया. और अगर जेनिक है तो आप भी समझते हैं क्योंकि वो अगर आपके दूसरे के पास मेल है तो क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा. सो 50% मेल स्टेराइल एंड 50% मेल फर्टाइल. सो बी लाइन इज नोन एज अ मेंटेनेंस लाइन. आर हमेशा रेस्टोर कर देगा, वो हमेशा आपको क्या देगा, वो मेल फर्टाइल. ठीक है ना. सो ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन, इसको याद रखिएगा. इसलिए बोला आपका इसमें तो आपने पढ़ा होगा ना वेरिएशन में मेल स्टेरिलिटी, देन सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट. आई थिंक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. Bagging, crossing, labeling, harvesting, and so on. I think I have already up to the birth method. ना birth method तक मैं पढ़ा चुकी थी ना. एक बार और बता दीजिए ना. ए लाइन में फीमेल ए लाइन में बेटा फीमेल स्टेराइल हो, मेल फीमेल तो सभी में होगा. मैंने उस दिन यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्यों नहीं मैं प्लांट को पिक कर लेती हूँ. अगर मेल फीमेल नहीं है तो क्रॉस कैसे होगा. आपको बहुत ये बच्चे तो जानते हैं, पहले क्लास में पूछने की पहले बताइए ये प्लस फीमेल का प्लस क्यों होता है और उसका एरो क्यों होता है. सिंपल थिंग, मेल इज मोटाइल, फीमेल इज फिक्स, दैट्स व्हाई प्लस लगता है और हमेशा मेल वहां पे आके फिक्स करता है. तो कभी भी विदाउट फीमेल अगर आपका आप फीमेल पार्ट को नहीं डिटैच कर सकते हैं, उसको नहीं हटा सकते. इसीलिए हम सिर्फ इमेस्कुलेशन करते हैं, है ना. गायनिक वो ये नहीं कहते कि आपका फीमेल पार्ट हमने हटाया, क्योंकि फिर तो पॉसिबिलिटी नहीं लाइफ की, क्योंकि वो आपके जो है फीमेल प्लांट के वूम में ही प्लांट सीड डेवलप होते हैं ना. अगर आप हायर उस पे सोचे तो भी आपको समझ में आ जाएगा. तो अभी आपको ए लाइन इज मेल स्टेराइल बट फीमेल तो होना ही होना है फर्टाइल. बी लाइन इज सेम, मतलब यहाँ पे जो आपका जीन यहाँ पे मेल स्टेराइल है बट एमएस इज प्रेजेंट. एलोलोमा पढ़ते हैं आप ना कि जी उसका डोमिनेंट जीन नहीं है. मैंने इसलिए स्टार्टिंग बोल दिया स्मॉल एस मीन्स मेल स्टेराइल जीन, बट कौन सा है, रिसेसिव है. स्मॉल एस स्मॉल. इसका सेम आपका बी क्या है, वो मेंटेनेंस लाइन है. उसके पास जो है वो आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन टोटल सेम बट दे आर मेल फर्टाइल. सो सपोज दे आर मेल फर्टाइल, सो दे हैव द एमएस, कैपिटल एमएस, स्मॉल एमएस, दोनों जीन उनके पास. आपने क्रॉस कराया तो अगर हमारा इस समय प्लांट जो स्टेराइल है दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी. आपको अच्छे से पता है कि जो अगर हम कहते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड मेंडल्स लॉ, एक लाइन का आंसर विल यू गिव मी. रेसिप्रोकल क्रॉसेस आर डिफरेंट. इसमें मेल में उसमें क्या है आपके मेंडल्स का क्या है, जो डोमिनेंट दैट विल कम अप इन फर्स्ट जनरेशन, बट इन साइटोप्लाज्मिक व्हिच इज एक्ट एज अ फीमेल विल कम एट द फर्स्ट. यही तो पढ़ते हैं आपने, ये तो आपको सबको पता है. रिजल्ट ऑफ द रेसिप्रोकल क्रॉसेस आर डिफरेंट. Same thing here. Suppose it is a male cytoplasmic male sterility, we will get 100% male sterile. So they maintain the. आपने क्रॉप यूज कर दी, उसने फिर से बना दिया, मेंटेनेंस हुई. That's why B line is called maintenance line. R सिंपल उसका जो आपका हेटेरोजाइगोट तो यहाँ पे सभी हैं. अगर आपका उसमें डोमिनेंट जीन था तो आपको क्या देगा, बट नेचुरल अगर आप कैपिटल एम लिख देंगे तो आपको क्या मिलने वाला, फर्टाइल मिलेगा. तो उसने क्या किया, रेस्टोर कर दिया. आपने पैरामीशियम का क्रॉस पढ़ा था ना कि अगर जीन है तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को बाद में वो चीज को पैरामीशियम में आप पढ़ते हो ना कपा पार्टिकल्स, इफ कैपिटल के इज देयर यू विल गेट द आफ्टर द फर्स्ट जनरेशन यू विल गेट द के, अदरवाइज डिमोलिश हो जाएगी. इसी से आपने पढ़ी है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपका सेकंड जनरेशन तक आते आते डिस्पेयर हो जाएगा अगर वहां पे उसका जीन जो है वो नहीं होगा. ये बात तो आप जानते हैं. तो चीज सिंपलेस्ट जो आप पढ़ चुके हैं साइटोप्लाज्मिक. तो हमेशा हम कहेंगे अगर के है एनीथिंग, कोई आप ए बी टी, टॉल के लिए टी कह दीजिए, फर्टिलिटी के लिए हमने मेल स्टेरिलिटी की, जो भी आप तो जो आपका अगर वो वहां पे डोमिनेंट जीन है सो हमेशा आपको F1 में क्या देगा, फर्टाइल. सो दैट्स व्हाई R इज अ रेस्टोरर, B is a maintainer, A is a female plant. This is a A line, B line. I think ऐसा आपके एग्रीकल्चर में होगा, क्वेश्चन होगा तो आ सकता है. A line, B line and R line. आप इनके नाम याद रखिए. I think मुझे आपको पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट समझेंगे नहीं तो याद रहेगा नहीं. ठीक है, इट्स ओके.
देन स्टार्ट विद द, मुझे लग रहा है मैं आपको बल्क मेथड तक बता चुकी थी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। बैक क्रॉस मेथड, व्हाट इज बैक क्रॉस? F1 जनरेशन को क्या करते हैं? एनी और रिसेसिव? एनी पेरेंट्स। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? ये चीजें जरा आप देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म है आपका मल्टीपल क्रॉस। मल्टीपल क्रॉस मींस जो अब ये लाइन आपको समझ में आई बेटा, मोर देन वन लाइन। करेक्टर्स आपके होंगे सिंपलेस्ट सिंगल क्रॉस, टू लाइंस आर देयर डबल क्रॉस, मोर देन टू इज मल्टीपल क्रॉस। ओके, मिक्स में क्या पता है मास सिलेक्शन कर गया। टफ है इसको कर दो लास्ट में। आपके वर्ड्स में दो को मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका जो हाइब्रिडेशन के बाद क्या लिखा, मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट द मास सिलेक्शन। इज देयर एनी प्रॉब्लम? मास मींस मास, बल्क में, ठीक है, बट देयर इज डिफरेंस, समथिंग डिफरेंस बिटवीन मास एंड बल्क। जो आपकी कन्वेंशनल मेथड है, जो शुरू से चला आ रहा है, जो हमारे फार्मर्स यूज करते हैं, उन्होंने अच्छा खासा एक नेचुरल जो उसमें की लोकल वैरायटी है उसको जो करते आ रहे हैं, सो किया, बेटर को चूज किया, बेटर को आप लोगों ने रखा नेक्स्ट जनरेशन के सीड के लिए, फिर उसी को सीखो। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आपका कि उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, सीड को सेलेक्ट किया, देन बल्क में ग्रो किया, फिर फर्स्ट जनरेशन से सीड को सेलेक्ट किया। कैसे सेलेक्ट करते हैं? जो हमारे डिजायर्ड ट्रेड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको फिनोटिपिकली ही देखते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है प्योर लाइन से? प्रोजेनी टेस्टिंग नहीं होती है। प्रोजेनी टेस्टिंग मैंने आपको लास्ट में बताई थी ना विल्मोरिन की, जब आप इंडिविजुअल प्लांट को सेपरेट करके प्रोजेनी आपको मैंने जैसे आपको अगर सिंपलेस्ट समझ में आया, अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ, टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये अपने को सेग्रीगेट करते हैं। तो जब हम ये चीज टेस्ट करते हैं वो हमारा आता है प्रोजेनी टेस्टिंग में। आपको ये भी मालूम है जीन्स की अपनी क्वालिटी अगर वो हेट्रोजाइगस है तो क्या करते हैं, सेग्रीगेटिंग पैटर्न है वो, जब तक आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और बीच में कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, जब तक पूरा सेग्रीगेट नहीं हो जाएगा 50% में अपने को वो सेग्रीगेट करते रहते हैं। इसको हम कहते हैं सेग्रीगेटिंग मटेरियल, जो हम यूज करते हैं प्योर लाइन में। बट मास में हम क्या कहते हैं, बल्क में उठाया, ग्रो किया, फिनोटिपिकली चूज किया, और जो हमें अच्छा लगा देन मास में हमने फिर उनको सीड्स को अलग अलग नहीं उठाया, बल्क में आपने बस उसको गैदर किया, कलेक्ट किया, ग्रो किया, कलेक्ट किया, ग्रो किया, सेलेक्ट किया, ग्रो किया। आफ्टर 3 जनरेशन मुझे ऐसा महसूस, आप जब अच्छा लेते जाओगे तो पॉसिबिलिटीज देयर कि दे आर टुवर्ड्स टू होमोजाइगोसिटी, बट वी कांट से, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट जनरेशन में वो अपने को सेग्रीगेट कर जाए। बट हमें देखने में, कंपेयर करने में दिख रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा मास सिलेक्शन है। और जो 3 प्रोसेस मैंने कॉमन आपको बताए थे, स्टार्ट विद द ट्रायल ना, प्रोजेंट आपका डिफरेंस मैंने, प्रोजेंट टेस्टिंग यहाँ पे नहीं होती है। आप क्या करते हो, बस स्लो करते हो और सेलेक्ट करते हो, उसको आप ग्रो करते हो, फिर आप सेलेक्ट करते हो। आफ्टर 3 जनरेशन हम उनको क्या करेंगे, सेपरेट ग्रो करते हैं, फिर उनमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं बेटर, और उसको फिर हम 3rd और 4th जनरेशन के बाद भेज देते हैं ट्रायल के लिए विद चेक वेराइटी। चेक वेराइटी क्या होती है, जो लोकल वहां से जहां पे हम ग्रो कर रहे थे वहां की कोई वेराइटी लेके उनको साथ में ग्रो करते हैं चेक करने के लिए। क्यों? अगर हमारी वेराइटी से बेटर है तो हमने आपको 2-3 नाम बताए थे पिछली बार। सिलेक्शन में क्या कहते हैं वेराइटी टेस्टिंग को? इनिशियल इवोल्यूशन वेराइटी टेस्टिंग। और भी एक और था प्रिमिटिव वेराइटी टेस्टिंग, और भी कहते हैं स्टेशन वेराइटी टेस्टिंग। बहुत सारे नाम हैं जो आपको याद रहे, मतलब ये नहीं कि वो दूसरा है तो आपको ये मुझे पता नहीं था। ऑल आर द फॉर द सिंपल प्राइमरी टेस्ट। फर्स्ट जो हम टेस्ट करते हैं प्रीलिम, मतलब सबसे पहला चेक वेराइटी के साथ हमने वहाँ की लोकल वेराइटी के साथ चेक करते हैं, और अगर हमें वो बेटर मिलता है तो उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन वेराइटी चेक। स्टेशन चेक क्यों समझ सकते हैं, वाई इट्स कॉल्ड स्टेशन चेक, क्योंकि वो पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए वो
वहाँ पे ये विजिबल है कि नहीं, वहाँ वो ग्रो कर सकती है कि नहीं, वो उससे बेटर है कि नहीं, तो उसको हम उसी जोन में करते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं स्टेशन चेक। ऑल 3 नेम्स फॉर द सेम चेकिंग। चेक इसलिए जो वैरायटी पर आप साथ में पैरेलल ग्रो करते हैं उनको हम चेक वैरायटी कहते हैं, क्योंकि उनसे हम कंपेयर करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, उसको 3 जो मैंने आपको ना कोऑर्डिनेशन चेक या फिर आपका मल्टी लोकेशन चेक, ये किस लिए होता है, आप जो है जोन के बाहर वहां पर जाकर हम देखते हैं कि चेक आप क्या करते हैं बेटा, डिस्टेंस होना चाहिए, बेटर जो कैरेक्टर आपने डिजायर किया तो उसके अच्छे आपको शो होने चाहिए। तो ये आपका पैटर्न आपका सिंपल दूसरा। आफ्टर 3 इयर्स 8 इयर्स लगता है टोटल मास सिलेक्शन में। आफ्टर 3 इयर्स क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, बल्क में ग्रो करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फार्मर्स को ग्रो करने के लिए। दिस इज सिंपल मास सिलेक्शन, आपके उसमें है ना कोर्स में मास सिलेक्शन। देन प्योर लाइन सिलेक्शन, प्योर लाइन आप भी समझते हैं। और क्रॉस का आप सिंपल है, क्रॉस ये आपका जो मास सिलेक्शन है कहाँ पे होगा, क्रॉस लाइन, क्योंकि हम किसी चीज को कोई भी चीज हम रोक नहीं रहे हैं, कोई भी हमने बार नहीं लिखा है, आपने लिया और उसको बल्क में ग्रो कर दिया, बेटर को सिलेक्ट किया देन ग्रो कर दिया। उसके बाद हमने उसको फिर थर्ड को आपने अच्छे से कैसे चेक किया, फिनोटाइप ना, सिर्फ देख रहे हैं कि देखने में अच्छा है, बाहर से हमें अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे हैं मीन्स दे हैव द जीन, सपोज टू हम ऐसा कहते हैं कि अगर वो सबसे अच्छे हैं तो वो, क्योंकि नहीं होंगे, अगर आर होगा स्मॉल टी होगा तो आपको स्मॉल दिखेंगे, आपको ग्रेडेशन दिखेगा, वी विल सेलेक्ट बेस्ट वन, देन वी विल सेलेक्ट बेस्ट वन। तो आप एक आपने अपनाया प्लॉट, उसमें से आपने अच्छे लिए, तो 3 के बाद थर्ड वैरायटी के बाद हम उसकी चेक वैरायटी के सिंपलेस्ट है आपका मास सिलेक्शन, कुछ भी इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं समझने की बात है, बस इसका आपको ये ध्यान देना कि क्रॉस वैरायटी के लिए यूज होगा। और हम ये कह सकते हैं कि दे हैव मोर बेटर जीन्स, क्यों, क्योंकि वो अपने आप से उनके पास रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं किसके खिलाफ, नेचर के खिलाफ। अगर वहां पे डिसीज है तो अगेंस्ट डिसीज, अगर वहां पे जो कोई भी नेचुरल एडवर्सिटी है सो अगेन नेचुरल एडवर्सिटीज कोई भी हो सकती हैं, और वो अपने आप नेचुरली सेलेक्ट हो रहे हैं। दिस इज द मास सिलेक्शन, हैलेट एंड रिम्पाउ। इसको जर्मन प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जर्मनी में किया गया था। हैलेट एंड रिम्पाउ थोड़ा सा बस डिफरेंट है। हैलेट्स ने कहा था कि अगर आप ये वैरायटी ग्रो करते हैं विद फेवरेबल कंडीशन, एंड रिम्पाउ ने कहा था विद एडवर्स कंडीशन। So which one is better? With adverse condition. So this is the mass selection. Pure line, inbred, selfing, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस में। यहाँ पे हमारा क्या करते हैं बेटा, आप हमने आपसे क्या कहा था लास्ट टाइम बताया था, जैसे आपको बल्क सेक्शन, अगर आपने बल्क और पेडिग्री पढ़ लिया था, दैट इज सिंपल, कोई बहुत फर्क नहीं है। आप इनको क्या करते हो, फर्स्ट आपने हाइब्रिडाइज किया या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप लिया, फिर आपने उनको क्या किया, रो में प्लॉटिंग कैसे करते हो, रो में प्लॉट में और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उस जो आपने बल्क में 20 और 30 जैसे ट्री ग्रो किए, उनके प्रोडक्ट प्लांट और सीड्स जो भी आपने लिए उसको हमने अलग अलग, मास में क्या था, कंबाइंड सिलेक्शन था, आपस में मिक्स सिलेक्शन था सीड्स का। यहाँ पे क्या था, फ्रॉम द ईच ट्री सेपरेट सिलेक्शन, सेपरेट हार्वेस्टिंग, सेपरेट थ्रेशिंग। आपने जो रो में प्लांट्स ग्रो किए उनके अलग अलग सीड्स को लेकर के 3 F2 F1 F2 एंड F3 तक हमने उनको स्पेस के साथ, रो के साथ, प्लॉट के साथ, सिंगल ट्री रोज के साथ ग्रो किया, ठीक है। आफ्टर 4th फीलियल जनरेशन, आई थिंक यू नो अबाउट द फीलियल जनरेशन, क्या करते हैं, इंडिविजुअल ग्रोइंग, इंडिविजुअल प्लांट, अकेला प्लांट का ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद 5th और 6th जनरेशन में हम क्या करते हैं, जो हमने एक प्लांट का सीड लिया फिर हम उसमें मल्टी लाइन ग्रो करते हैं, ठीक है ना, 3 to 4 लाइन फ्रॉम द सिंगल सीड्स फ्रॉम सिंगल प्लांट। सो अब आपको लगा ना, एक ही प्लांट के 3 और 4 सीड्स आपको एक साथ रो में कंपेयर किया गया, तो आपको क्या मिलेगा, उसमें जो भी जितना भी सेग्रीगेट होना होगा वो हो चुका होगा, क्योंकि वो सिंगल। आप फैमिली ट्री आप समझते हैं ना बेटा, फ्रॉम 1 to फिर 2 फिर देन 3 देन 4, सो आपको एटलीस्ट हेटेरोजाइगोसिटी वहां तक आते आते लेस हो जाती है और वो बिल्कुल प्योर हो जाते हैं। प्योर, यहाँ पे प्योर का साफ का मतलब सिर्फ सीधी सी बात है होमोजाइगोसिटी, क्योंकि उसके बाद में हमारा वो रिसेसिव कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो जो बेटर वन है, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस, ट्रायल, फील्ड ट्रायल विद द चेक वेराइटी, प्रिमिटिव, देन सेकेंडरी। ओके, आफ्टर दैट क्या करोगे आप, बल्क में ग्रो करके आप जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। न्यू वैरायटी आपकी बन गई ना, कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपने लोकल वैरायटी से चेक करा, जो उसके ट्रेड्स थे वो बेटर थे आपके,
प्रीवियस वन से जो ऑलरेडी ग्रो हो रही थी। कोई भी ऐसी क्रॉस याद है आपको जो प्योर लाइन सिलेक्शन से सेलेक्ट की गई है? वीट पढ़ते हैं, वीट पढ़ा होगा मिस्सी में, कोई एक वैरायटी बताइए। यू हर्ड द वर्ड कल्याण सोना, दैट इज द डेवलप बाय द प्योर लाइन सिलेक्शन। कैसे डेवलप हुई है? 614 लाइन्स, जैसे बोलो ए लाइन, बी लाइन, सी लाइन, दीज आर नथिंग, दीज आर ग्रुप ऑफ द सीड्स। 1614 लाइन जो आपका मैक्सिकन सीमेंट से ला करके लेकर, पहले शुरुआत से क्या ना, आपने कुछ और नाम भी सुने होंगे, मैं क्या, लार्मा रोसो है ना, एंड सोनारा 63 64, बट बहुत पसंद नहीं की गई थी। क्यों? दे हैव द रेड ग्रेन्स। लाल सुना था, लाल गेहूं आता था, मोटा गेहूं आता था। तो उसके बाद 614 आपके 63 एंड 64 लर्मा रोजो और आपका सोनारा यो डिस्कार्ड कर दी गई। देन प्योर लाइन से क्या डेवलप हुई? कल्याण सोना, जो कि आपकी वीट की एक अच्छी वैरायटी। अगर आपको याद रखना हो तो आप याद रख सकते हैं। और किसने दिया था ये प्रश्न? जॉनसन, सबने सुना हुआ है। किस पे वर्क किया था उन्होंने? जॉनसन ने प्योर लाइन के लिए फेसियोलस वल्गेरिस, प्रिंसेस बीन, आ जाएगा यार, सब मालूम है ना। और क्या क्या ट्रेट लिया था? फेसियोलस प्लांट, सीड साइज, इंडिया में फर्स्ट चॉइस, बल्क में बहुत ज्यादा ग्रो करना, हमारी डिमांड को सप्लाई। फर्स्ट वी प्रेफर क्वांटिटी देन क्वालिटी बिकॉज ऑफ द फूड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, सो जॉनसन ने फेसियोलस वर्गेरिस, इसको आपका फ्रेंच बीन भी कहते हैं, प्रिंसेस वैरायटी उन्होंने किया था और सीड साइज लिया था। मेरे ख्याल से इसमें तो नहीं लिखा होगा कहीं। और इसका आपका जो है वर्त उन्होंने, और इसको साथ में देखा क्या था उन्होंने, ट्रेड क्या लिया था? सीड साइज। ये बता दिया वीट की। राइस में भी मेरे ख्याल से यू द वर्ड श्यामा, श्यामा वैरायटी ऑफ राइस, दिस इज डेवलप बाय द काली मूछ वैरायटी एक थी जो कि टॉल एंड जिसके आपके ऑफ साइड, डॉफ एंड ऑफ साइड, ऑफ लाइन हुआ ना, किसी टॉल वैरायटी से आप ऑफ शॉर्ट लीजिए तो उसको हम कहते हैं ऑफ साइड। सिलेक्शन करने के लिए जीन वही थे, उससे डेवलप अच्छी खासी फ्रेग्रेंस वाली वैरायटी श्यामा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्योर लाइन सिलेक्शन आप लिखते हैं, सो यू हैव टू राइट डाउन 1 2 3 एग्जाम्पल। आई थिंक इतने ज्यादा और भी आप कुछ सोच सकते हैं। ब्रेसिका जिनसिया किसकी वैरायटी है? मस्टर्ड की। बनारस से अगर रिलेट करते होंगे तो वहां पे एक वर्ड है वरुणा, नदी है क्या है ना। तो अगर ऐसे याद रखेंगे तो अब हमेशा याद रहेगा। उससे जो प्योर लाइन से वैरायटी डेवलप हुई वो है वरुणा। इस तरह लिंसिड की एक है राजस्थान से ली हुई चंबल। सो दीज आर द वैरायटी, सब नहीं याद करने बट 3-4 जो है आपके प्योर लाइन से। तो आपका ये जो हाफ पार्ट है ना वो मैंने पहले क्लियर कर दिया। आपके हाइब्रिडेशन के बाद क्या है? मास सिलेक्शन एंड pure line selection. Is there any problem with mass selection, pure line selection? Nothing. बस you have to remember जैसे अब merits and demerits. mass selection के demerits पहला तो सेग्रीगेट कर जाएंगे जीन आपके, और अच्छा ही बता दीजिए बेस्ट जीन, बेटर जीन, बिकॉज दे सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशन, नेचुरल कंडीशन। ओके, वेरिएबिलिटी इज देयर, क्योंकि आप उसमें कोई बर्डन नहीं डाल रहे ना, आपने उसको छोड़ दिया इकट्ठा बल्क में उगा दिया। सो क्रॉस पोलिनेशन इज देयर, तो क्रॉस होगा तो हाइब्रिडाइजेशन इज देयर, सो वी विल गेट द बेटर वन। ठीक है। और उसके बाद प्योर लाइन में टीडियस है, टाइम टेकिंग है, और लेमैन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर प्रोजेनी टेस्टिंग करेंगे, इंडिविजुअल प्लांट टेस्टिंग करेंगे, सो वी रिक्वायर द ब्रीडर, वेल इक्विप्ड ब्रीडर। देन वी हैव टू मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स। Pure line selection is also known as the progeny of the one plant. Is it right? सही है कि गलत है? आपने सीड्स जो शो किया, आपने सेपरेट करते करते जो आपको प्रोजेनी मिले, आप कह सकते हो ना फ्रॉम द वन सिंगल प्लांट, तभी तो वो ट्रू सिलेक्शन हुआ आपका। ये काम कर इसका रिकॉर्ड रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, सो इट इज ऑल्सो द वेरी टाइम टेकिंग और थोड़ा मेहनत का काम है। और साथ में साथ कौन कर सकता है इसको? साइंटिस्ट ही कर सकते हैं, ब्रीडर ही कर सकते हैं। ठीक है। देन सो दिस इज ऑल अबाउट द मास सिलेक्शन एंड पेडिग्री विद सम वेराइटीज। मैंने आपसे कहा ना, जैसे आपकी पिजन पी की एक कोई है मिर्जापुर की एक वैरायटी थी मालविया विकल्प, ये आपकी जो है इसकी वैरायटी है पिजन पी की, बिल्ड रेजिस्टेंट है ये आपकी। इस तरह से 2-3 जो आपके कोर्स में क्रॉप्स हों उनकी जो वेराइटीज आपके डेवलप हो,
मास सिलेक्शन से या प्योर लाइन सिलेक्शन है, यू हैव टू रिमेंबर. ओके, देन कम टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर हाइब्रिडेशन. बल्क मेथड आई थिंक कंप्लीट हो गया था. बल्क मेथड लास्ट टाइम मेरे मुझे लगता है मैंने बल्क मेथड और ये आपका जो है वो एक्सप्लेन कर दिया था ना, पेडिग्री एंड बल्क सिलेक्शन. पेडिग्री मुझे लाइन ऑफ एंसेस्टर, सेम प्योर लाइन सिलेक्शन, लाइक अ प्योर लाइन सिलेक्शन वी मेंटेन द ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द वन जनरेशन, F1 जनरेशन टू लास्ट जनरेशन. आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस पेडिग्री और प्योर लाइन में नहीं मिलेगा ना. आप क्या कैसे कोई पर्टिकुलर वैरायटी हम कहते हैं कि अगर सपोज इट इज क्रॉस यूज इन क्रॉस पॉलिनेशन और यूज इन द सेल्फ पॉलिनेशन, क्या हम उसको पूरा स्टिक कर सकते हैं? नहीं, हम उसको दूसरे से कभी नहीं करेंगे. क्या प्योर लाइन क्रॉस सिलेक्शन वैरायटी में हम नहीं कर सकते? हम फर्स्ट मेक देम द इनब्रेड एंड कम टू प्योर लाइन, देन सेलेक्ट बाय दिस मेथड. और हम उसको फोर्सिबली करना पड़ेगा, बट वी कैन यूज बोथ द वैरायटीज फॉर, बट पर्टिकुलरली मास सिलेक्शन फॉर द क्रॉस सिलेक्शन क्रॉस पॉलिनेटिव वैरायटी एंड प्योर लाइन सिलेक्शन इज अ सेल्फ पॉलिनेटिव. इज इट ओके? देन थर्ड आप बहुत आसान बैक क्रॉस मेथड, मुझे लगता है आप सब जानते हैं. F1 जनरेशन क्रॉस विद द एनी पेरेंट, दैट इज द बैक क्रॉस मेथड. यहां लिखने की क्यों जरूरत हुई, इसको देखकर बताइए. इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर जो मैं बोलूंगी आपको, फिर मैंने पहले जो बोला वो स्लाइड्स मैंने बताइए तो आपको समझ में आएगा. इसको पढ़िए, फिर मैं बताऊंगा बैक क्रॉस की क्या जरूरत है. ओके, इज देयर एनी टिपिकल थिंग जो आपको और प्रोसेस में नहीं दिखता? दिस इज 50%, then 75%, then 87%, then 96.8%. ये अभी आपने इतने प्रोसेस मैंने कहीं पे परसेंट या नंबर एक्सप्लेन नहीं बोला ना, यहाँ पे आके बोला. क्यों? हमें क्या, ये हमारा बैक क्रॉस मेथड क्यों यूज होता है? सपोज वी हैव डेवलप्ड नंबर ऑफ कल्टीवार्स, जो वेराइटीज वी हैव कल्टिवेटेड दैट इज नोन एज अ कल्टीवार्स, बिकॉज वी डेवलप द नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, दैट्स व्हाई दिस सिंपल प्लांट्स जो हम आपको बदलते बदलते अपने वेराइटीज को, ट्रेड्स को ऐड करते करते नोन एज अ कल्टीवार्स. सो सपोज वी हैव एनी लोकल और पॉपुलर वेरी गुड वेराइटी विद नंबर ऑफ ट्रेड्स विच वी रिक्वायर. जैसे अभी मैंने कहा दाल से सॉफ्ट प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो गया आपके गेहूं में, आप देखते हैं स्मूथ भी है रोटी, आगे आपको बाजरा या मक्के की बनानी पड़े तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट वीट की आपको बहुत आसान. तो हमने क्यों किया, हमने उस चीज को धीरे धीरे जो है जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करते रहे और अच्छे से को सेलेक्ट करते गए. अभी हमारे पास कोई वैरायटी विद 100% जीन ऑफ गुड कैरेक्टर, कोई नई बात नहीं है. आप जो आज वैरायटी यूज कर रहे हैं दैट इज आप जिस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए जो आपका क्रॉप होगा उसको आपको 100% मिलता ही होगा. बट सपोज कोई एक ऐसी चीज है जो कम है, सपोज प्लांट इज वेरी वेल जो आपका न्यूट्रिशियस बट डिसीज ससेप्टेबल, disease susceptible, so disease is one. Okay, so only one gene which is responsible for that particular type of the disease. एक gene हुआ ना, we have only this one gene or we have already 100% good variety. Suppose we allow to cross between these two varieties, we will get the resistant also and with some good trait, but how much? Now tell me, I have already explained you segregation materials. Mendel's second law, law of segregation, gene segregate in half, 50%. Is it okay? Okay, तो क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ 49 जीन्स का, 50 from the A and 50 from the B. So we have 99 की जगह कितना हुआ, 49 plus 1, यही तो हुआ आपका. और सारे कैरेक्टर 49 किसके आ गए, 50 plus 1 तो मेरे मतलब का हुआ, एंड 49 कहाँ हो गया, जो वाइल्ड वेराइटी है. इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन इट मीन्स द वेराइटी इज वाइल्ड और अननेचुरल. आप जीन क्रिएट नहीं करते ना, नेचर में हमने कहीं से देखा कि ये प्लांट हमारा ग्रो कर रहा है, ये डिसीज रेजिस्टेंस है, तो अगर वो डिसीज रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब दे हैव दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द जीन जो उसको रेजिस्टेंट बना रहा है. लेकिन वो हमारा कल्टीवार नहीं है, तो और उसके पास कोई भी ऐसे ट्रेट नहीं है जो हम उसको इनकॉर्पोरेट करके ले सकें.
सो अगर आपने क्रॉस कराया दोनों के बीच में तो 51 गुड कैरेक्टर एंड 49 bad character. That's why we remove the all 49 bad genes or not required genes, undesirable genes, not bad, but undesirable genes. So we have to do the back cross. Okay? Is it okay? So suppose this is 50% in F1 generation. So back cross here. So how this will come? 75. Further 50%. You have the word donor and receptor, recurrent and non-recurrent. जो क्रॉप जीन देती है दैट इज डोनर, जो एक्सेप्ट करता है दैट इज एक्सेप्टर, जो और इसमें रिकरेंट और नॉन रिकरेंट, जो बिल्कुल करेंट वे में फ्लो में क्रॉस चल रही दैट इज अ रिकरेंट, जो नहीं चल रही है नॉन रिकरेंट, हमारे पास जो डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी और वाइल्ड क्रॉप थी दैट इज नॉन रिकरेंट, क्योंकि हम उसका यूज सिर्फ एक बार करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन रिकरेंट। और दूसरा हमारा बैक क्रॉस कराते करते हम उसको रीगेन करेंगे ना। हाउ सिंपल, हमने बोला आपसे फर्स्ट जनरेशन में आपने जीन आपका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, विल गेट द हाइब्रिड सीड, सो 49 प्लस 51, देन क्रॉस बैक क्रॉस में जाइए। अभी आपको 100% कौन सा जीन था, कैप, सपोज एक चीज और भी आपको बताना शायद मुझे थोड़ा सा बताना जरूरी है, सपोज दिस जीन इज गवर्न बाय द डोमिनेंट और रिसेसिव। हो सकता है ना कभी कभी कैरेक्टर शो करता है डोमिनेंट जीन से और कभी कभी शो करता है रिसेसिव जीन से, ये बात तो आपको समझ में आई क्या? अगर मैं इसको बता दूंगी फिर आपसे रिसेसिव पूछने वाली हूँ, इसको बहुत, इसमें मैंने आपसे कहा डिसीज रेजिस्टेंस, ओके, गवर्न बाय द डोमिनेंट जीन, तो हम कौन से बैक क्रॉस करेंगे, जो हमारा पेरेंट डोमिनेंट होगा, ये हमारे लिए इजी प्रोसेस है। आपने बैक किया क्योंकि वो डोमिनेंट है तो वो आसानी से 55 प्लस 25, ठीक है। फिर उसके बाद अभी 87 कहां से आ गया, कैलकुलेशन इज सिंपल मैथ्स, नथिंग मोर देन दैट। आपका 75 हो गया तो अभी 25 का हाफ करिए ना, ओके, सर ऐड दैट 12.5, आफ्टर दैट हाफ ऑफ द 12, जो जगह होगी वहीं तो आप जाएंगे, संख्या 100 के ऊपर नहीं जाएगी। तो जैसे जैसे आप बैक क्रॉस करते जाएंगे आप अपना रिमेनिंग रिड्यूस करते जाएंगे, पहले 50 आपने लिया तो आपके पास ऑलरेडी 50 है, ठीक है, और 50 आपके पास 50 हम अगर उसको माने तो आपके पास नॉन रिकरेंट वैरायटी का है, ठीक है ना। फिर तो आपका 25 उसके पास प्लेस कितना पाना, 50 तो ऑलरेडी उसके पास है, सो 25 देन 75 रीगेन, आफ्टर दैट 87 रीगेन, आफ्टर दैट कहते करते जब तक हम लिखते हैं बैक क्रॉस 6 जनरेशन तक हम जब बैक क्रॉस करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 99 point something we will get. This is a back cross method with dominant gene, जो हमारा नॉन रिकरेंट है, करेंटली नॉन रिकरेंट है, वो हमारा डोमिनेंट है, ठीक है ना, सही है ये बात। अब अगर हमारा रिसेसिव होगा तो यही होगा, ये एक और देख लीजिए, इससे समझ लीजिए आप, यहाँ पे हाफ हो गया, देन 1/4, देन 1/8, देन एन नंबर, धीरे धीरे रिप्लेस करते गए और आपका बेटर जितने कैरेक्टर से बेटर ट्रेड्स थे वो आते गए, ठीक है। दिस इज सिंपलेस्ट, इसमें कुछ नहीं, सिंपल मैथ कैलकुलेशन है, और यहाँ पे आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे अप्लाई होता है कि जीन हमेशा 50-50% पे सेग्रीगेट करते हैं। Is it okay? Okay. Now up you tell me gene which we required on the recessive gene. Then what will go? क्या प्रॉब्लम है? बैक क्रॉस करेंगे. So is there any change? This is your amazing course. No? टेस्ट लॉस हो जाएगा. हमें टेस्ट लॉस करना नहीं है. We can't prove this. हमें टेस्ट मुझे रिकवर हम तभी वालों का रिकरेंट एंड करेंट ना, मुझे रिकर समझते हैं ना, वापस चाहिए अपनी चीज जो हमने 50% डिवाइड कर दिया ना, वो चीज हमको, मैंने बोला 100% गुड ट्रेड्स, 1 वी रिक्वायर्ड. ओके, इन 1 क्लास अगर आप कराते हैं, जीन ऑलवेज सेग्रीगेट द 50% एंड 50%. सो वी हैव F1 जनरेशन विद 50% गुड जीन एंड 50%
matrix. So further we go to the back or recover. Then after we have already 50%, so 50% ka half 25. Then we will get the 75. Then further go to back. Then after the B6 back cross 6 generation, we will get approximate. We can say 100% plus 1 और 99% plus 1 gene which we incorporate जो हम चाहते थे इसके अंदर आ जाए disease resistant और वो wild variety. Same thing. Suppose this gene which we require present on the recessive gene, ये dominant कर दूं, तो क्या फर्क पड़ना चाहिए? मैंने आपके सामने क्रॉस करके रखा, बैक कर दूं, पीछे कर दूं? ओके, नाउ टेल मी, अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगी आपको समझ में आया। इसमें कोई चीज आपको समझ में ना आने वाला तरीका है नहीं ना। मैंने आपसे बोला वन पेरेंट इज अ डोनर और करेक्ट। सपोज कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर रेजिस्टेंट वन ना, इसको भूल दीजिए, बहुत सिंपलेस्ट जो आप पढ़ते हैं, रेजिस्टेंट आर फॉर द रेजिस्टेंट वन। ओके, देन सेकेंड वन इज रिसेप्टर स्मॉल आर। ठीक है ये बात? समझिए मैंने अभी जो बोला वो समझ में आया? फिर ये क्यों नहीं समझ में ये सही है, ये क्रॉस में गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन रिसेसिव में 50% हो जाएगा, बट आप कभी रिसेसिव जीन आपका कैपिटल आर जहां भी रहेगा खुद को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन कभी भी रिसेसिव जीन अगर कैपिटल आर के साथ रहेगा तो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये आपने नहीं पढ़ा? सेग्रीगेशन आपका जब आप पढ़ते हैं अगर आप क्रॉस करते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर इन फर्स्ट पीरियड जनरेशन you will get the capital R in the small r, that is the hybrid. So suppose this gene which is we want it is capital R, तो अपने को शो कर रहा है, फिर हम बैक में गए, फिर कैपिटल R मुझे मिला, फिर तो जहां जहां वो रहेगा वो अपने को शो करता जा रहा है, हम उसको रिप्लेस बैक क्रॉस में जाते हैं, वो अपने जीन्स को रिकवर करता है ना, रिकरेंसी आती जा रही, दैट इज इट इज रिकरेंट प्लांट। अगर वही जीन आर स्मॉल आर पे, तो अगर आप यहाँ पे स्मॉल आर पे जीन होता तो अपना कैपिटल आर तो अपने को शो करेगा। इसी क्रॉस को आप देख लीजिए, कैपिटल आर को आप भूल जाइए, अब आप ये सोचिए कि वो स्मॉल आर जीन है, तो फिर क्या होगा? रिसेसिव जीन अपने को कब एक्सप्रेस करेगा बेटा? जब हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होगा। डोमिनेंट जीन आपका हाइब्रिड में शो करेगा क्योंकि वो डोमिनेंट है, बट रिसेसिव कैन नॉट। इसमें रिक्वायर्ड है कि स्मॉल आर ही रहेगा। मुझे प्लांट भी नहीं पढ़ानी, नॉट द मेंडल्स लॉ। देन यू टेल मी, जीन सपोज जीन ऑन द रिसेसिव क्रॉस, देन व्हाट विल वी गेट? सिंपलेस्ट थिंग बेटा, आफ्टर द सपोज बैक क्रॉस करना की जगह बाद में आपको सेल्फिंग करानी पड़ेगी। सेल्फिंग करा जब आपके पास क्रॉस हाइब्रिड मिल रहा है ना, तो जब आप सेल्फिंग कराएंगे तो आपको कैपिटल आर कैपिटल आर देन स्मॉल आर। So the process is back cross one, then one selfing में समझना आपस में क्रॉस करना, then back cross 6 क्रॉस तक आपका जीन रिकवर होता है, वो प्रोसेस नहीं चेंज होगा, वो तो सेम है। या बैक क्रॉस में आप जाएंगे 50%, then further back cross 25 तो 75% then 25 75%, then further back cross half of the 25 plus 12, then further plus 6. This is the same process up to the B6 back cross 6 generation, you will get the 97 98 plus 1 gene। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? अभी भी B6 तक जाएंगे, बट कैसे सेलेक्ट करेंगे? मैंने बोला ना जीन आप आंख से देख के नहीं सेलेक्ट करते, तो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे? सेलेक्ट करने के लिए हमको सेल्फिंग करानी पड़ेगी। जब हमारा रेसिस्टेंट जीन आएगा स्मॉल आर, तब वो प्लांट शो करेगा कि रेसिस्टेंट है। बात आप समझ रहे हो? स्मॉल आर तो आपका B1 देन सेल्फिंग, B2 B3 देन B मतलब बैक क्रॉस BC1 then selfing, then BC2 and BC3 then selfing, after that 3 के बाद आपका 4 and 5 then selfing, after that same process जैसा हम पेडिग्री सिलेक्शन या मास सिलेक्शन में ट्रायल टेस्टिंग। आगे यहाँ पे भी तो सेल्फिंग नहीं करा, यहाँ पे सेल्फिंग नहीं करा, हमने बैक क्रॉस किया। वेयर इज द सेल्फिंग? सेल्फिंग मींस कि सेल्फिंग आपका एक सपोज वी विल गेट दिस वन, सपोज आपको ये क्रॉस मिला, अब इसको हम आपस में क्रॉस कराएं, हमने आपस में कोई क्रॉस नहीं कराया, सिर्फ बैक में कराया। तभी तो मैंने खोल के रखा है, जहां पे आपको प्रॉब्लम मुझसे पूछिए। आप क्लास क्रॉस कर कर आपको नहीं समझ में आया किसी, इट मींस कि देयर इज सम डिफिकल्टी, सो
पूछिए, मैं बताने को तैयार। आप सेल्फिंग का मतलब समझते हैं? जैसे F1 जनरेशन में जो प्लांट आए, आपका मेंडल का आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपने पढ़ा है। तो सेल्फिंग का मीन्स जो आपको 9:3:3 का रेशियो मिला, वो आपको सेल्फिंग से मिला, क्योंकि आपने फर्स्ट पीरियड जनरेशन को आपस में क्रॉस कराया। ओके, दैट इज द सेल्फिंग, आपस में क्रॉस कराना। जो आपको F1 मिला, उसमें F1 के प्लांट्स को आपने आपस में, तभी तो जीन सेग्रीगेट होते हैं। आप सेल्फिंग जो कराते आ रहे हैं अभी तक टीचर, इसका मतलब आपको मास सिलेक्शन, पेडिग्री एंड प्योर लाइन भी नहीं समझ में आया। सेल्फिंग हम करा क्यों रहे थे? मैं इसीलिए करा थी कि जीन अपने को, सबसे लास्ट में मैंने पहला वर्ड बोला था आपको, सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन, सेग्रीगेटिंग मटेरियल। जब भी हाइब्रिड है तो वो सेग्रीगेट करेगा, जब तक वो होमोजाइगोसिटी तक नहीं पहुंचेगा। दैट इज द सेम आपका जो पूरा चला आ रहा है मैथड, दैट इज सेग्रीगेटिंग मटेरियल। हम किस चीज का हिसाब रख रहे हैं? जो हम बता रहे हैं, आपका हमने एंसेस्टर लाइन रखी है, लाइन ऑफ एंसेस्टर प्लांट को हमने क्रॉस कराया, क्या मिला था हमें? हाइब्रिड। F1 इज हाइब्रिड। वो हाइब्रिड हमारा हम प्योर में लाते, तभी तो इतनी जल्दी से ग्रो करके उसको होमोजाइगोसिटी मिला रहे हैं। और जो ये हमारा मटेरियल है, दैट इज नॉट अ सेग्रीगेटिंग मटेरियल। मटेरियल इज द लाइन ऑफ द सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन। सेग्रीगेट कर रहा है जीन अपने आप को, दैट इज अ सेग्रीगेट। मींस अपने को वही आपका 1:3:1, दैट इज अ सेग्रीगेशन लॉ। वो सबके लिए वही है, 9:3:1 इज सेग्रीगेशन। तो वो सेल्फिंग, अब आप सेल्फिंग समझिए ना क्या होती है सेल्फिंग। तो यहाँ पे सेल्फिंग नहीं है, हमें क्या कराया? फिर से बैक कराते जाने। बैक, जब हमारा रिसेसिव होगा तो हम प्लांट को सेलेक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि ये प्लांट अपने को एक्सप्रेस कर रहा है, बिकॉज अगर यहाँ पे कैपिटल आ रहा है मींस प्लांट इज रेजिस्टेंट, मैंने देखो और सेलेक्ट कर लिया। बट अगर वो रिसेसिव है और कहीं पर भी कैपिटल आ रहेगा तो अपने को एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे? दैट्स व्हाई सेल्फिंग इज देयर। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अगर आपका गवर्न बाय द डोमिनेंट जीन और गवर्न बाय द रिसेसिव जीन। ना समझ में आई बात अब आपके? और उसका सीक्वेंस क्या है वो आप रटेंगे, वो आपका काम है, बट मैं बता देती हूँ। फर्स्ट पीरियड जनरेशन के पास फर्स्ट PC1, देन 1 सेल्फिंग, आफ्टर दैट 2 and 3 PC1, then 1 सेल्फिंग, आफ्टर दैट 3 and 4 PC1 मींस बैक क्रॉस। बैक क्रॉस जब आप लिख के करेंगे आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि तब आप कुछ करोगे, जब आप सेल्फिंग करोगे ना तो आप बनाओगे कैपिटल R स्मॉलर, कैपिटल R स्मॉलर, देन स्मॉल r स्मॉलर। तो जिस भी सेल्फिंग करने पे आपको स्मॉल r मिलेगा, तो हम वहां पे सेलेक्ट कर सकेंगे हाँ ये डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट है, तभी वो एक्सप्रेस करेगा। क्योंकि अगर आप क्रॉस साथ में पैरेलल में डिसीज वैरायटी या इनोकुलेट कर दें या वहां पे डिसीज वैरायटी आप ग्रो कर दें, तो ये प्लांट आप कैसे शो करेंगे? वो डिसीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट जीन तो रिसेसिव, उस पे रिसेसिव जीन पे है। तो सेलेक्ट करने के लिए हमको सेल्फिंग करिए। डिफरेंस है आपके बैक क्रॉस मेथड में कि आपका जीन जो ट्रेट आपको चाहिए, सिंगल जो भी ट्रेट आप 1 और 2 ट्रेट आपको उसमें ऐड करना है अपने कल्टीवार के साथ, अकेला आपका कॉम्बिनेशन क्या है? बेस्ट वैरायटी, 1 वीक कैरेक्टर, 1 best character, then all undesirable character. 100% desired character plus 1 desire. हम चाहते हैं प्लांट में कल्टीवार में सारे अच्छे ट्रेट्स हैं, बट एक चीज नहीं है, क्या? रेजिस्टेंट टू एनी टाइप ऑफ डस्ट। मींस आपके लिए आसान है, डस्ट बोल रही हूँ, कोई भी डिसीज हो सकती है और कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। यहाँ पे डस्ट नहीं दिया हुआ है, मैं जो बोल रही हूँ आपके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आपके लिए टॉलनेस, रेडनेस, जो हाई स्कूल से आप पढ़ते आ रहे हो, रेड कलर टॉल मेंडल्स ने आपके कैरेक्टर्स लिए। ओके, तो ये आपके माइंड में है, आपको समझ में आसानी से आएंगे। अदरवाइज एनी ट्रेट इज देयर, एनी T, Z, Y, X इज देयर। सपोज मैंने आपको बताया A लाइन, B लाइन, C लाइन, R लाइन, अगर हम वहां पे प्लांट को लिखेंगे तो हम लिखेंगे X प्लांट एंड क्रॉस बिटवीन X एंड Y एंड Z, क्योंकि वो A से आपस में जुड़ जाएगा। तो आप डिनोट किससे कर रहे हैं? देयर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अभी आपको समझ में आया कि अगर आपका जीन सिंगल जीन जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं बैक क्रॉस मेथड से, अगर वो डोमिनेंट है, दैट इज सिंपल बैक क्रॉस अप टू द B6 जनरेशन। इफ देयर जीन कम विद द रिसेसिव वन, सो ऑल्टरनेट विद द सेल्फिंग। इज इट ओके? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हो। आप नहीं आया क्या? बताइए, पूछिए। बैक क्रॉस नहीं समझ, बैक क्रॉस आपको, आप सिंपल सोचिए एक क्या, हाँ रिसेसिव, हाँ कोई बात नहीं, बस उसमें आप ही पहले मैं आपको मेंडल्स का बताती हूँ। बेटा उसमें है नहीं, वो स्लाइड नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं है। आप वो स्लाइड, यू वांट स्लाइड से समझेंगे। इस अगर आपको स्लाइड चाहिए तो मैं बता देती हूँ, सुनिए। आप यहाँ पे आने के बाद जैसे आपने बैक क्रॉस रन कराया ना,
इसके बाद हम यहाँ पे सेल्फिंग करेंगे। अगर आप कैपिटल आर और कैपिटल आर को क्रॉस कराइए तो क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर देन कैपिटल आर स्मॉल आर, 3:1 का रेशियो करिए। सिंपल मेंडल्स लॉ को सोचिए, 1:2:1 रेशियो और 3:1 रेशियो, बट स्मॉल आर स्मॉल आर। कोई भी हाइब्रिड को आप क्रॉस कराएंगे तो आपको क्या मिलता है? 1:1 का रेशियो सोच लीजिए या 9:3:3:1 का सोच लीजिए। होता ये जहां भी डोमिनेंट जीन होगा उस कैरेक्टर को शो करेगा। रिसेसिव में यही प्रॉब्लम है कि क्योंकि कैरेक्टर रिसेसिव जीन से गवर्न है और अगर उसका डोमिनेंट जीन हमेशा उसके साथ रहेगा तो वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो वो मुझे हर क्रॉस में ना करके सेग्रीगेशन वाला लॉ जो है वो यूज करना पड़ेगा। बैक क्रॉस करने के बाद सेग्रीगेट करना पड़ेगा, बैक क्रॉस करने के बाद सेल्फिंग करनी पड़ेगी, ताकि वो अपने को एक्सप्रेस करके आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर का कंडीशन हमको शो कर सके। जो स्मॉल आर वो तो कैसे भी आएगा, मैंने बोला ना, आप कैपिटल आर और स्मॉल आर को क्रॉस कराइए, आपको मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, अब आप कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल को क्रॉस कराइए, आपको क्या मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर देन स्मॉल आर। गलत बोला मैंने, आप नहीं मेरे बात पे ध्यान दे रहे। कैपिटल आर होगा, सुन लिया आपने? सही है ये? ठीक है, देन कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। अभी ठीक है? तो मेरा काम है, मैं जब सोते रहते हैं आप तो मैं उल्टा बोलती तो क्या आपकी आंखें खुल जाए। सो कैपिटल आर स्मॉल आर देन स्मॉल आर स्मॉल। ये तो आपको क्रॉस मेंडल का पता है ना, यही यहाँ पे अप्लाई होना है। जब आप सेल्फिंग करेंगे तो आपको ये तीनों टाइप के इंडिविजुअल मिलेंगे। अब यहाँ पे हमें प्योर स्मॉल आर मिल गया। आप भी जानते हैं कि रिसेसिव जीन के साथ अगर डोमिनेंट जीन होगा तो अपने को एक्सप्रेस नहीं करेगा। बैक क्रॉस करने की करके तो हमेशा उसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर ही रहेगा जो आपको दिख रहा है। ठीक है ना? सेल्फिंग करने से हमें इसका क्या आ जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो जब ये जो हमको किसको सेलेक्ट करना है? जो स्मॉल आर स्मॉल, लेकिन जीन इसमें चेंज होते जा रहे हैं। क्यों? मैंने फर्स्ट जनरेशन में किया B61, फिर हमने सेल्फिंग की, फिर हमने 2 बार बैक क्रॉस किया, तो जीन ट्रांसफर होता जा रहा है। बट हम सेलेक्ट कैसे करें? जब तक स्मॉल आर हमको दिखाई नहीं पड़ेगा हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर हम एक बैक क्रॉस करते हैं, फिर एक सेल्फिंग करते हैं, फिर 2 बैक क्रॉस करते हैं, फिर एक सेल्फिंग करते हैं, फिर 2 बैक क्रॉस करते हैं, फिर सेल्फिंग करते हैं। जाएंगे अभी भी हम B6 तक, वो प्रोसेस यहाँ पे सेम है, उसको कोई नहीं। हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस है क्योंकि हमें प्योरिटी में स्मॉल आर चाहिए। अभी आपको समझ में आया? सेल्फिंग मींस नथिंग, जो प्लांट आपको जनरेशन में मिला उसको हमने आपस में क्रॉस करा दिया। F1 जनरेशन के बाद बैक क्रॉस में गए, जो आया उसको हमने आपस में क्रॉस कराया। दैट इज द सेल। जो जिस जनरेशन में प्लांट, जैसे F1 जनरेशन में आपको मिला, आपने F1 जनरेशन के सारे सीड को आपस में क्रॉस करा दिया, दिस इज सेल्फिंग। देन F2 पे अगर हम आते हैं, F2 आपका 2 BSC के बाद आएगा क्योंकि जनरेशन 2 बैक क्रॉस जा रही है। ठीक है, तो जब हमारा F2 आया, फिर हमें जो मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, हमने उसको आपस में क्रॉस करा दिया। तो क्रॉस को ही हम सेल्फिंग मींस आपस में कराना, उसी जनरेशन की सीड्स को आपस में क्रॉस कराना मींस सेल्फिंग। अगर आप दूर से सेल्फ क्रॉस मींस कहीं बाहर से लाके कराते हैं तो क्रॉस कराया, बट अगर उसी में आप करा रहे हो तो सेल्फ हुआ। तो सेल्फिंग इज नथिंग, जो जनरेशन में आप पहुंचे उसके आपस में ट्रेड्स को आपने क्रॉस करा दिया तो वो सेल्फिंग हुई। और जब वो सेल्फिंग होगी तो आपके जीन सेग्रीगेट करेंगे, डोमिनेंट, हाइब्रिड देन रिसेसिव। ये तो इतना तो आपको पता है। जब वो रिसेसिव, और क्योंकि जीन रिसेसिव के पास है तब वो अभी अपने को रिसेसिव तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब वहां पे वो अपने आप में प्योर होगा। स्मॉल आर, दैट इज द कैरेक्टर trait governed by the recessive gene, and that is the जो दिख रहा है डोमिनेंट जीन। ठीक है, ये कोर्स में किसके नहीं था? MSc के नहीं था, हाइब्रिडाइजेशन में था बेटा। दिस इज द प्रोसेस। आपको मैंने इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, देन बल्क सिलेक्शन, देन पेडिग्री सिलेक्शन, आफ्टर लास्ट में बैक क्रॉस में आता है। ये बैक क्रॉस मीन बोथ टाइप। बुक्स भी बहुत आराम करती है, बुक्स भी एक देकर छोड़ देती हैं। बहुत सारी बुक्स में डोमिनेंट जीन से बता दिया, रिसेसिव से नहीं बताया। मुझे नहीं पता था तो मैं वो भी स्लाइड डाल लेती, बट समझ में आया आपके कि नहीं आया? अब मुझे आप बताएं कि किसके बाद सेल्फिंग होगी, कितनी बैक क्रॉस करने के बाद सेल्फिंग करेंगे? 6 तो टोटल बैक क्रॉस हो गया। B1 B61 बैक क्रॉस, जो शॉर्ट वर्ड है ये BC1 देन सेल्फिंग।
आफ्टर दैट BC2 and BC3, then selfing, क्योंकि सेलेक्ट करना है मुझको। आफ्टर दैट BC4 and 5, उसके बाद आपको सेल्फिंग और सब कुछ करना पड़ेगा। क्यों? फिर तो आपका बाकी नीचे का प्रोसेस जो है वो सेम हो जाएगा, जैसे आप प्लांट सिलेक्शन करते हैं, फिर आप ट्रायल करेंगे, फिर आप चेक वैरायटी के साथ वो करेंगे। ये पार्ट तो आपका हाइब्रिडाइजेशन का ही, दिस इज द टाइप ऑफ अ मेथड। कोई एक जीन आपने रेस्टोर किया, किसी जीन को आपने 90% अच्छे जीन के साथ ट्रिप से ऐड किया, बट है क्या? प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ही तो है। तो उसके बाद B6 के बाद सेम वही प्रोसेस होगी जैसे कि आप बर्थ मेथड और प्रेडिक्टरी मेथड में करते हैं। सिलेक्शन मेथड ना क्या होता है आपका? प्रिमिटिव ट्रायल, देन सेकेंडरी ट्रायल विद चेक वैरायटीज, देन मल्टीप्लाई, देन इज इट ओके? अभी समझ में आया? एक बार कॉल कर लो, उसका मेरा फोन नंबर ले लो। उसके क्लास तो मेरी है नहीं, तो मैं बता नहीं पाऊंगी। उसके अंदर फिर भी अभी जब तक मैं हूँ फिर आप पूछ सकते हैं अगर क्लियर ना हुआ। इसके बाद हमने आपको बताया होगा सिंगल, एक और लिख पाएगा ना बेटा, इंटरस्पेसिफिक इंटरजेंट में लास्ट में आपको बता चुकी हूँ। देन बल्क मेथड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, देन पेडिग्री मेथड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, देन बैक क्रॉस मेथड इज ओके। आफ्टर दैट सिंगल सीड डेसेंट, लिखा है कुछ? लिखा है इसमें? है दिया नहीं दिया? नहीं दिया। एक और मेथड होता है। अब आपके प्रॉब्लम होती है, आपका कोई अलग कोर्स होता है, एमएससी का एक कोर्स होता है? नहीं, आपको यहाँ पे फॉर द योर एग्जामिनेशन देयर इज एनी सिलेबस? इसमें क्योंकि मुझे तो मैंने बोला ना सिंपल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन और मास सिलेक्शन में 3 बार पहले कर बोल चुकी है आपको। तो मेरा ये कहना कि मैं ज्यादा तो नहीं बोल रही हूँ, मेरा कहना ये है क्योंकि आपके प्रेडिग्री और बल्क सिलेक्शन के बाद एक और मेथड होता है हाइब्रिडाइजेशन में, होता है सिंगल सीड डेसेंट। ये क्या होता है? दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ बल्क मेथड। नाउ जिसको बल्क मेथड याद है या किसको नहीं याद है? लास्ट टाइम पे बल्क मेथड बताया था आपको याद है? बल्क मेथड और पेडिग्री मेथड में डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बल्क मेथड एंड पेडिग्री मेथड? क्योंकि जो सिंगल सीड डिसेंट बोल रहा है आपको, ये डिसेंडेंट जो आपका बोल रहा है, दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ बल्क मेथड। तो अगर आपको बल्क मेथड नहीं याद होगा तो दिस इज डिफिकल्ट फॉर यू। बात सिर्फ इसमें यही है, बल्क मेथड में आपको मैंने बताया था इन बल्क सेलेक्ट एंड हार्वेस्ट FN जनरेशन इन अ बल्क। कब तक? 5th जनरेशन तक। देन इंडिविजुअल प्लांट ग्रोइंग, देन एक और था ना लाइंस में ग्रो कर जाता है, मल्टीपल लाइंस में, दैट इज द बल्क मेथड। ये तो सबको याद है। वहां पे हम क्या ले रहे थे? प्लांट। यहाँ पे हम क्या लेंगे? सीड। ओनली डिफरेंस आप आगे ना, आपने प्लांट सेलेक्ट किया, देन ग्रो इन द रोज, देन सेलेक्ट बल्क इन द प्लांट एंड सेलेक्ट द सीड एंड रो। तो हम यहाँ पे इसको रो में नहीं ग्रो करेंगे क्योंकि हम ये हमारे लिए होता है, इसको कहते हैं व्रिल। गार्डन एंड आई थिंक ब्रिल साइंटिस्ट ने सेलेक्ट किया था, इसके लिए आपका क्या था? व्रिल मींस रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइन। देखने के लिए उन्होंने क्या किया? सीड्स को लिया, सेलेक्ट किया, देन मास में ग्रो किया, देन सेलेक्ट द सीड, देन फर्दर। अभी तक आप कहते थे सीड्स को तो आपने ऐसा नहीं किया होगा, बाद में आपने प्लांट को मास में किया था। तो पहले हमने क्या किया? FN जनरेशन में स्पेस पे ग्रो किया अच्छी तरह से कर। मैंने बताया स्पेस क्यों करते हैं? 222 पॉइंट से कम कोई भी नहीं, क्योंकि लाइट चाहिए, इरिगेशन चाहिए सब। उसके बाद हमने प्लांट से क्या सेलेक्ट किया बेटा? सीड, देन एक साथ उनको ग्रो किया, देन सेकंड जनरेशन, देन थर्ड, अप टू 5th जनरेशन, और बहुत पास कंडेंस। किस लिए? ताकि वो रिकॉम्बिनेशन हो, इसीलिए इसका नाम है व्रिल, रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस। बात समझ में? लाइंस का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स गेट टुगेदर, दैट इज लाइन। सो इट इज अ व्रिल, रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस। तो आपको क्यों उन्होंने क्या किया? उसको आपका पूरा लाइन लिया, जैसे आप प्लांट बल्क में ग्रो कर रहे थे, यहाँ पे बेटर सीड सेलेक्ट है, अच्छी सीड्स को लिया, डिजायर्ड ट्रीज को लिया, देखने में जो अच्छे उनसे सीड लिया, बट कंडेंस ग्रो किया, फिर सेलेक्ट किया, देन कंडेंस ग्रो किया। तो ये हमारा, क्योंकि सीड से प्लांट ग्रो हुआ, तो बट नेचुरल की बेटर होगा ना बेटा। इसमें थोड़ी सी प्रोजेनी, थोड़ा सा प्योर लाइन सेलेक्ट हो गया। जब आप प्लांट नहीं ला के सीड ले रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि वो अपने को बहुत ही प्योर लाइन में एक्सप्रेस करेगा। सो दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बल्क। बट आपको इसमें जो प्लांट मिलेंगे वो बहुत प्योर मिलेंगे, क्योंकि आपने एक, जैसे मैंने कहा प्रोजेनी में, कि आपको जो आपका प्रोजेनी था वो सिंगल सीड से डेवलप था। सेम इज हियर, दिस इज अ बल्क मेथड।
बट फ्रॉम द सीड्स। एक सीड नहीं आप करोगे, बल्क में ग्रो करोगे, बट कंडेंस में कोई रो फॉर्मेशन नहीं, कोई प्लॉट फॉर्मेशन नहीं, कोई इस तरह हमने बहुत फास्ट फास्ट करने से क्या, फिर हमने सेलेक्ट किया, फिर हम लोगों को बहुत कंडेंस उसमें किया ताकि वो आपस में क्रॉस करके रिकॉम्बिनेंट बना सके। दैट इज दिस लाइन इज ब्रेड बोन ऐसा, ठीक है। ये आपका सिंगल सीड डिसीज कहलाते हैं, ठीक है। और बताइए और क्या बचता है? आप लोग ने जाके कुछ भी देखा या पढ़ा नहीं? सब आता है। डबल क्रॉस मेथड आप ये देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आ रही? ये आपका आपस में दो क्रॉस मिल गए तो उसके बाद आपने फर्दर क्रॉस कर दिया। दिस टाइप क्रॉस नहीं होता, डबल क्रॉस, नथिंग मोर देन, इसमें कोई बहुत नया नहीं है। फिर मल्टीपल अचीवमेंट्स क्या मिलेंगे? जो आपने सारे ट्रेड्स दिए वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसको पढ़ के देखिए क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही। लोकल वैरायटीज, ओल्ड प्योर लाइन वैरायटीज, इंफ्यूज वैरायटीज, या कोई भी प्योर लाइन मास सिलेक्शन कहाँ से लाके आते हैं? जो आपके लोकल एरिया में ग्रो कर रही होती है। या ओल्ड प्योर लाइन्स ऑल ऑफ अवेयर ऑफ द प्योर लाइन्स। आपको प्योर लाइन मालूम है? आप बताइए। फर्स्ट रो प्योर लाइन। व्हाट डू यू मीन द प्योर लाइन? Method of the yes, it's okay. Improvement of self-pollinated crop. But what do you mean the pure line? That is the same. Good. All technique or selection methods for the improvement of the plant. Is it okay? But what is the pure line? What is the inbred? What is the self-made? कुछ भी नहीं, बैठ जाइए। ये तीनों वर्ड आप सबको मालूम है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है इसमें लिखा है, इसलिए मैंने पूछा। बट प्योर लाइन मीन्स होमोजाइगोसिटी इज देयर। अब ये बता दीजिए क्यों होमोजाइगोसिटी चाहिए हमको? अगर हेटेरोजाइगस है, मुझे लगता है कि अगर हाइब्रिड, मैंने आपको बताया हाइब्रिडेशन में कि हाइब्रिड्स आर बेटर, बट हम उसके बाद उसको प्योर कर रहे हैं। वाई? हाइब्रिड हमने इसलिए कि जीन को कलेक्ट किया, बट हाइब्रिड प्लांट्स कभी भी गुड नहीं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन मैंने अभी बताया है ना, दे विल सेग्रीगेट एंड दे विल गिव द ऑल कैरेक्टर्स जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स ही चाहिए। दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट देम द प्योर लाइन, ओके। और प्योर लाइन के लिए हमें अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो प्योर लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए सेल्फिंग अभी, ठीक है। इसलिए आपस में क्रॉस कराते हैं ताकि जीन सेग्रीगेट होते होते हेटेरोजाइगोसिटी से होमोजाइगोसिटी पे पहुंच जाएं। इसी को हम कहते हैं प्रोजेनी टेस्टिंग। जो भी वर्ड्स आपको इसमें जो भी ना समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है हम आपके सिलेबस से ज़्यादा बता चुके हैं आपको। आप अपना सिलेबस खोल के देख सकते हैं। मास सिलेक्शन वेरिएबल एलिमेंट्स को बेटा आप बोलिए, कुछ पूछना? नेगेटिव मास सिलेक्शन भी कोई चीज हो सकती है, जो हमें नहीं अच्छे लगेंगे वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। दैट इज अ नेगेटिव वन। बेस्ट वन इज पॉजिटिव वन, वर्स्ट देन बैड वन इज अ नेगेटिव वन। एप्लीकेशंस एंड स्टेप ऑफ मास सिलेक्शन, दिस ऑल। आप एक ही कैरेक्टर को इवोल्यूशन ऑफ फील्ड ट्रायल्स, रिलीजिंग न्यू वैरायटी, सिलेक्शन ऑफ बेस पॉपुलेशन, ये सब आपके एक ही चीज को जैसे कहा जाता है ना, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द वर्ड। आपको एक कैरेक्टर लेंगे अगर तो उसको मैंने अच्छी करने के लिए, उसके अच्छे ट्रेड्स को लाने के लिए, उसके बेटर यील्ड के लिए, बेटर सेलिब्रिटी के लिए। अब ये अगर सपोज मैं आपसे पूछूं कि एक होता है ना मैच्योरिटी ऑफ द प्लांट, तो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी गुड और बैड? शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, ये दिस इज अ प्लॉट लाइक सपोज दिस इज मास सिलेक्शन। अभी नहीं समझ में आया जिनको, आप इसमें देखिए। It will take hardly 8 years. Mass selection and pedigree more than I think 9. About in some books 6 to, you can say 6 to 8 years and 9 to 11 in pure line selection. एक ही जगह से चेंज होता है जहाँ पे हम क्या स्टार्ट कर देते हैं, इंडिविजुअल प्लांट। अदरवाइज आपका जो है वो जस्ट रीड इट। इज देयर एनी प्रॉब्लम? प्लीज टेल मी। I think this is up beyond to you. Yes. Mass selection process itself want to know coupled with the progeny testing. उन्होंने क्या किया, आपस में जोड़ दिया, ठीक है ना। मास सिलेक्शन में प्रोजेनी टेस्टिंग नहीं करेंगे ना, बट अगर आप सेल्फ बॉन्डिंग क्रॉप है तो हम उसको, मैंने बोला ना कि हर चीज के लिए some exceptions and some modifications. Doors are always open for the
एनी टाइप ऑफ साइंस में बहुत ज़्यादा वास्ट आपके पास प्लेस है, आप उसमें कुछ भी एक्सपेरिमेंट, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू एंड यू विल गेट द बेटर रिजल्ट इफ इट इज बेटर, अदरवाइज यू विल स्टार्ट just see, okay, then merit and demerits, and that is all about the, okay, you can ask me anything if you want. आप कैमरा ऑन ऑफ कर दो. क्या कंफ्यूजन, मैं अभी कर देती हूँ. आई एम हियर फॉर व्हाट. मैं अगर इनका ट्रेन पिछली बार छुट्टी होती तो मेरा लास्ट टाइम एक कन्फर्म, क्योंकि मुझे सिर्फ बैक क्रॉस और बताना था आपको. बल क्रॉस सिंपली स्टार्ट विद द